previous videos, we have discussed all the concepts related to the chapter motion. Now we will discuss its NCERT exercises. Let's begin. First numerical is, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? मीन्स एक सर्कुलर ट्रैक है, एथलीट पूरा राउंड उस सर्कुलर ट्रैक का 40 सेकेंड्स में कवर कर लेता है. डायमीटर इज 200 मीटर्स. वी हैव टू कैलकुलेट 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है एंड कितना डिस्प्लेसमेंट. लेट्स बिगिन. दिस इज द सर्कुलर ट्रैक. सपोज एथलीट ने ए पॉइंट से रन करना शुरू किया है in this direction. Now, time for one round is given as 40 seconds. Total time is given as 2 minutes 20 seconds. We will convert 2 minutes into seconds by 60 plus 60 and this is for 20 seconds. We get the total time as 140 seconds. Now, what is the number of rounds taken? कितने rounds लिए हैं उसने? ये हम निकाल सकते हैं टोटल टाइम अपॉन टाइम फॉर वन राउंड करके. टोटल टाइम इज 140 एंड टाइम फॉर वन राउंड इज 40 एंड वी गॉट 3.5 राउंड. इसका मतलब 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में उसने सर्कुलर ट्रैक के 3.5 राउंड्स ले लिए. नाउ वी नो डायमीटर इज 200 मीटर्स. इट इज गिवन. वी कैन कैलकुलेट रेडियस बाय डिवाइडिंग डायमीटर बाय 2. That is 200 upon 2 equals to 100 meters. Now we know the circumference of the circle is distance covered in one round. What is circumference of the circle? Basically it is 2 pi r. We are putting the values 2, pi is 22 by 7 and 100. We get distance covered in one round equals to 628.6 meters. Now, what is the distance covered in 3.5 rounds? We will simply multiply distance covered in one round by 3.5. And we got the answer as 2200 meters. Now, we will see the displacement. After 3.5 rounds, athlete will be at point B. How? First round cover करने के बाद जब वो A point से A से चलना शुरू किया athlete ने, first round के बाद वो वापस A point पे आएगा. After second round also he will come back at point A. After third round also he will be point A. But next half round में he will reach point B. And what is the shortest distance to reach point B from point A? It is this diameter. So displacement AB is equals to 200 meters. A से B गया है इसलिए we have put this arrow because displacement is a vector quantity. So the displacement after 3.5 rounds will be 200 meters. Let's move on to our second numerical. Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and average velocities in jogging from A to B and from A to C? देखते हैं. सपोज एक ट्रैक है, स्ट्रेट लाइन. ये 300 मीटर्स का ट्रैक है. जोसेफ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स में. दिस इज जोसेफ. ए टू बी गया 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स में. उसके बाद उसने टर्न लिया और वापस सी पॉइंट पे गया 1 मिनट लेकर. तब हमें उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. 2 पॉइंट्स दिए हुए हमें फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम ए टू बी. लेट्स बिगिन. फ्रॉम ए टू बी टाइम कितना लिया? 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स. वी विल कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकेंड्स एंड वी हैव गॉट 150 सेकेंड्स. नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वी नो. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. What is the total distance from A to B? It's simply 300 meters. 300 meter का track है and time is 150 we have seen now. So average speed comes out to be 2 meters per
second. Now we will calculate average velocity. Average velocity का फॉर्मूला होता है total distance upon total time. Sorry, total displacement upon total time. So what is total displacement? A से B जाने का shortest distance क्या है? A से B जाने के लिए भी shortest distance हमारा यही है. So total displacement में value 300 ही आएगी. And time is also same. So we get average velocity equals to average speed, that is 2 meters per second. Now we will calculate average speed and average velocity for the second part, that is from A to C. A से B गया था, now back to C. अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं. B से C जाने के लिए हमें टाइम गिवन है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स. एवरेज स्पीड हमारी फॉर्मूला वी नो. नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कितना हुआ. पहले वो A to B गया होगा, उसके लिए 300 मीटर्स लगे और वापस C पे आया तो 100 मीटर और ट्रेवल किया. इसका मतलब 300 प्लस 100 एंड टाइम भी ऐसे ही हुआ 150 फ्रॉम A to B and 60 seconds from B to C. So from A to C average speed comes out to be 400 upon 210, that is 1.9 meters per second. Now what is the average velocity? Total displacement upon total time. This is very important point here. So total displacement कितना हुआ. अगर हम A to C shortest distance देखें तो वो A to B to C नहीं होगा, डायरेक्ट A to C होगा. और डायरेक्ट A to C कितना डिस्टेंस है 100 प्लस दिस 100, so 200 मीटर्स. लेकिन टाइम उसे उतना ही लगा C तक आने में. इट इज 150 प्लस 60. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट द एवरेज वेलोसिटी एज 0.95 meters per second. Okay, now let's go to third numerical. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 kilometers per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 kilometers per hour. What is the average speed for Abdul's trip? Means, suppose इस ट्रैक पे अब्दुल स्कूल जा रहा है, ये स्कूल है, पहले वो इस डायरेक्शन में स्कूल की तरफ गया, उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर. अब वापस आते हुए वो इस डायरेक्शन में वापस आएगा इसी पाथ के थ्रू, लेकिन इस बार उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हुई क्योंकि उसे लेस ट्रैफिक मिला था. तो हमें उसकी ओवरऑल ट्रिप की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है. लेट्स बिगिन. व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, एवरेज स्पीड कितनी है. जब वो स्कूल जा रहा था एवरेज स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर. और उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अगर हम डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करें और टाइम को t1 से, सो वी गेट t1 इक्वल्स टू t अपॉन 20. हमने t1 कैसे निकाला, सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मिलेगा. सिमिलरली व्हाइल रिटर्निंग, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से, हमारा डिस्टेंस तो सेम रहा. सेम कैसे रहा, उसी पाथ से आया और उसी पाथ पे वापस गया. d सेम है पर टाइम उसको अलग लगा क्योंकि लेस ट्रैफिक था. तो यहाँ से हम t2 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज d अपॉन 30. सो टोटल टाइम हम निकालेंगे t1 प्लस t2. व्हाट इज t1 इज t अपॉन 20 एंड t2 इज d अपॉन 30. After taking LCM, we got 60 as LCM, and after calculating whole, we get total time equals to d upon 12. So we will calculate the average speed. जो overall trip की average speed थी, अब हम उसे calculate करेंगे. Formula is again total distance upon total time. अब total distance कितना हुआ, एक बार वो ट्रिप पे इधर की तरफ गया और फिर वापस आया. एक साइड का अगर डिस्टेंस हमने d लिया था तो दोनों साइड का हो जाएगा d प्लस d एंड टोटल टाइम इज d अपॉन 12. हमने अभी कैलकुलेट किया. नाउ वी विल सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. d प्लस d इज 2d. नाउ इस d से ये वाला d कट हो गया, सो हमारे पास बचा 2 अपॉन 1/12. अगर हमारे पास दो डिवाइड्स में एक साथ होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक ही डिवाइड को हमने ऐसे लिख दिया और ये 1/12 आ गया. अब हमारे पास एक रूल होता है, अगर हम डिवाइड के बाद हमारे पास कुछ चीज अपॉन में होती है, वी विल रेसिप्रोकल इट. तो 12 हमारा ऊपर चला गया, 1 हमारा नीचे आ गया, एंड वी गेट एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 24 किलोमीटर्स पर आवर.